Hello everyone. So today I am going to take up a new topic of ISC class 11 syllabus, that is Act 2 Scene 4 of Macbeth. So basically in this scene we'll see that Ross is in conversation with an old man, and the old man says that he has seen strange portents on the night of Duncan's murder, King's murder. Macduff enters and gives them the latest news. It is said that the two grooms assassinated Duncan on behalf of two fugitive princes, that is Malcolm and Donalbain. In the meantime, we'll see that Macbeth has been chosen the king who will be crowned at Scone. So let's begin this scene. I hope this scene will be really helpful for you people. But before that, don't forget to like, share or subscribe to this channel. I humbly request you all to share this to your friends as much as possible. So let's begin with Act 2, Scene 4. So old man is having a conversation with Ross. Old man, 70 I can remember well. So he's telling that मेरी age जो है वो almost 70 years है. 1 score is 20 years. So 3 score is 60 years and 10 means plus 10. तो 70 years. 70 साल से मुझे almost याद है. Since 70 years, within the volume of which time I have seen hours dreadful and things strange. Within that time, इस 70 साल में I have seen some ड्रेडफुल, भयानक, स्ट्रेंज थिंग्स. मैंने बहुत ही भयानक, बहुत ही स्ट्रेंज थिंग्स देखी है. बट दिस सोर नाइट had trifled former knowings. But this evil night, he is talking about the night of Duncan's murder. आज जैसी रात ने वो सारी चीज़ों को इनसिग्निफिकेंट कर दिया है. पहले जो मैंने देखा था ना, वो सब आज के आगे कुछ भी नहीं है. इतनी भयानक रात कल रात की थी. ही इज टॉकिंग अबाउट डंकन्स मर्डर नाइट. इतनी भयानक रात कल रात की थी. ऐसी रात तो मैंने 70 साल में, पिछले 70 साल में कभी भी नहीं देखी है. रॉस, अ गुड फादर. सो रॉस इज अग्रीइंग. यस, गुड फादर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सच बात है, गुड फादर. Thou seest the heavens as troubled with man's act. It seems as if heaven is displeased, is not happy with human's act. Human beings are being too rude, too saucy, and probably heaven is not happy. Heaven हमारे act से, humans के act से खुश नहीं है, वो बहुत disturbed है. As troubled with man's act. Man's act कैसा act? Act of hatred, act of murder. उस act से heaven खुश बिल्कुल भी नहीं. Heaven is threatening the world. Why? Because of the deeds, bloody deeds which have been committed in this world. So indirectly they are talking about Duncan's murder. It seems as if heaven is threatening because of the bloody deeds which have been committed in this earth. By the clock it is day, and yet dark night strangles the traveling lamp. देखो clock के हिसाब से तो दिन होना चाहिए, लेकिन समय दिन का है, लेकिन देखो पूरी अंधेरा है, रात छाई हुई है, अभी तक सुबह ही नहीं हुआ है. सो ऑल्दो अकॉर्डिंग टू द क्लॉक इट इज़ डे, क्लॉक के हिसाब से इट इज़ डे, बट स्टिल द डार्कनेस ऑफ द नाइट इट इज़ चोकिंग दी सनबीम्स. ऐसा लग रहा है सनबीम्स को वो निगल रही है. डार्कनेस जो है सनबीम्स को स्टॉप कर रही है. ट्रैवलिंग लैम्प, लैम्प यहाँ पे सन की रेस को बोला है. Isn't night's predominance? It seems as if night is dominating. नाइट जो है वो विक्टोरियस हो गई है ओवर डे. इट सीम्स एज इफ नाइट इज डोमिनेटिंग, ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गई है. डे उसके आगे कुछ है ही नहीं. और द डे इज शेम, और इवन, और ये भी कहा जा सकता है द डे इज अशेम्ड टू शो इट्स फेस. डे को शर्म आ रही है अपना मुंह दिखाने में. दैट डार्कनेस डज द फेस ऑफ अर्थ एंटोम. एंटोम मतलब बरी या हाइड. सो इट सीम्स एज इफ अर्थ इज फीलिंग अशेम्ड टू रिवील इट्स फेस. तो नाइट ने सब कुछ कवर कर लिया है, सब कुछ ढाक दिया है डार्कनेस से, बिकॉज अर्थ इज फीलिंग अशेम्ड टू रिवील इट्स फेस. व्हेन लिविंग लाइट शुड किस इट. सो इतने वाइल्ड डीड्स हुए हैं. इट सीम्स एज इफ डे इज अशेम्ड टू
एक्सपोज इट्स बैड डीड्स, इसलिए नाइट ने कवर कर रखा है। इतनी बुरी डीड्स हो रही हैं, द डे इज फीलिंग अशेम्ड कि वो सामने आए और अपने बुरे बुरे कर्म सबके सामने लाए। सो दे आर अगेन टॉकिंग अबाउट डंकन्स मर्डर। देखो कितना अंधेरा हो गया है, इस समय तक तो रात को ख़त्म हो जाना चाहिए, मॉर्निंग आ जानी चाहिए, क्लॉक के हिसाब से तो मॉर्निंग का समय है, लेकिन देखो अभी तक निकला ही नहीं है सूरज, पता नहीं क्या हो रहा है। Old man, it is unnatural. Yes, this is absolutely unnatural. What is unnatural? ये जो रात हटी नहीं है, अभी तक सुबह हुई नहीं है, so this is something very unnatural, even like the deeds that done, more than the murder of Duncan. ये रात जो अभी तक हटी नहीं है, सुबह हुई नहीं, ये तो डंकन के डेथ से भी ज़्यादा बहुत unnatural है। On Tuesday last, a falcon, towering in a pride of place, was by a mousing owl hawked at and killed. Imagine he is giving an instant. बताओ falcon एक ऐसी बर्ड होती है जो बहुत ऊंचे उड़ती है, बहुत ऊंचे होती है और वही पावरफुल बर्ड होती है, ईगल टाइप्स होती है, बहुत पावरफुल होती है। और आउल जैसी इतनी डेलिकेट सी बर्ड ने, मतलब कितना अननेचुरल चीज़ है क्या कि ट्यूसडे रात को एक फैल्कन जो कि बहुत हाई पोजीशन पे टावर कर रही थी, फ्लाई कर रही थी, जो जितना वो मैक्सिमम अटेन कर सकती थी हाइट वहाँ पे थी, एंड दैट वाज अटैक्ड बाय एन आउल। सोचो फैल्कन को एक आउल ने अटैक कर लिया जो कि जनरली माइस खाता है। इमेजिन कितनी अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं, सच में बहुत अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं। रॉस एंड डंकन्स हॉर्सेस, अ थिंग मोर स्ट्रेंज एंड सर्टेन, ब्यूटियस एंड स्विफ्ट। यस, और एक चीज़ और बहुत स्ट्रेंज हुई है, पता है, डंकन की जो हॉर्स है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ऑल्दो ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है। द थिंग मोर स्ट्रेंज एंड सर्टेन, सर्टेन मीन्स फॉर श्योर वाली बात बता रहा हूँ। ब्यूटियस एंड स्विफ्ट, दे ऑल्दो दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी स्विफ्ट। डंकन के हॉर्सेस भाई किंग के हॉर्सेस हैं, ब्यूटीफुल भी होंगे, स्विफ्ट भी होंगे। द मीनियंस ऑफ देयर रेस, द बेस्ट ऑफ देयर रेस। अपने जाहिर सी बात है भाई किंग है तो उनके पास तो सारे ब्रीड का सबसे अच्छा हॉर्स होगा। टर्न वाइल्ड इन नेचर, वो एकदम से सारे घोड़े बिल्कुल वाइल्ड टर्न कर जाते हैं। ब्रोक देयर स्टॉल्स, वो अपने स्टॉल सब ब्रेक कर देते हैं। फ्लंग आउट, contending against obedience as they would have make a war with mankind. See, they were rebelling. वो लोग रिबेल कर रहे थे, जितने भी घोड़े थे इतने वेल ट्रेंड थे, उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा रिबेल कर रहे थे। they were rebelling against the training, जो उनको ट्रेनिंग मिली थी तमीज़ रहने की, तमीज़दार वे में बिहेव करने की, उसके अगेंस्ट कर रहे थे। अपने मास्टर्स तक को वो ओबे नहीं कर रहे थे, एज इफ दे हैड डिक्लेयर्ड अ वॉर विथ मैनकाइंड। वो बिल्कुल मैनकाइंड के अगेंस्ट चले गए थे, इतना अजीब सा, समथिंग वेरी स्ट्रेंज एक्ट कर रहे थे। ओल्ड मैन, इट इज सेड दे ईट ईच अदर। अरे मैंने तो ये तक सुना कि वो लोग तो खा रहे थे एक दूसरे को। इमेजिन एक घोड़ा दूसरे घोड़े को बैठ के खा रहा है, सो दिस वॉज सो डिस्गस्टिंग। मैंने तो ये तक सुना कि हाँ दे वर ईटिंग ईच अदर, रॉस दे डिड सो। अरे मैंने देखा, आई एम द विटनेस, मैंने खुद देखा ये चीज़, टू द अमेजमेंट ऑफ माइन आईज, मैंने खुद देखा दैट दे वर ईटिंग ईच अदर। मेरी आईज के अमेजमेंट के लिए मैंने ये चीज़ देखा। दैट लुक्ड अपॉन इट, हियर कम्स द गुड मैकडफ। यस, जो मेरी आंखों ने खुद देखा, दैट सॉ इट, उन्होंने खुद देखा कि हाउ दे वर ईटिंग ईच अदर। चलो गुड मैकडफ आ गए हैं। एंटर मैकडफ, हाउ डज द वर्ल्ड सर नाउ। सो हाउ इज़ द वर्ल्ड नाउ सर, क्या चल रहा है, हाउ आर द थिंग्स गोइंग ऑन नाउ सर, अब कैसा चल रहा है। सो रॉस एंड मैकडफ आर कजिन्स, ये लोग आपस में कजिन्स हैं। मैकडफ, वाई सी यू नॉट, तुम नहीं देख रहे हो क्या क्या चल रहा है। ऑब्वियसली इट्स क्वाइट विजिबल, सबको पता है क्या चल रहा है। रॉस, इजंट नोन हु डिड दिस मोर दैन ब्लडी डीड, क्या रिवील हो गया है कि किसने ये ब्लडी डीड किया है, कुछ आइडिया किसने ये मर्डर कमिट किया है, किसने मारा है डंकन को। मैकडफ, दोज दैट मैकबेथ हैज स्लेन, अरे वही देखो मैकबेथ का बिल्कुल प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अरे वही ग्रून्स जिसको मैकबेथ ने मारा है, वो गार्ड्स जिसको मैकबेथ ने मारा है ना, उन्हीं लोग ने ही तो मारा है। रॉस, अलास द डे, व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड। सो उससे क्या बेनिफिट उनको मिला, उन गार्ड्स ने जो डंकन को मारा है उससे उनको बेनिफिट क्या मिला। भाई किसी का मर्डर करते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। उन गार्ड्स ने डंकन को मारा, उससे गार्ड्स को क्या फ़ायदा हुआ ये तो बताओ। मैकडफ, दे वर सुबॉर्न, मैल्कम एंड डोनल बेन,
द किंग्स टू सन, नो दे वर हायर्ड, उनको तो हायर किया था, वो तो बस मोहरा थे. दे वर हायर्ड बाय द टू सन्स ऑफ डंकन, मैल्कम एंड डोनेल ब्रेन, आर स्टोल एंड अवे एंड फ्लेड. अरे दे हैव स्टोलन, वो लोग चोरी से चले भी गए, एंड दे हैव रैन अवे, वो यहाँ से भाग भी गए हैं. which puts upon them suspicion of the deed, and this is the reason why everyone is suspecting them. सब उन्हीं पे इसी वजह से शक कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो यहाँ से भाग गए हैं ना, तो माना यही जा रहा है कि उन्होंने ने अपने फादर का मर्डर करवाया है. रॉस अगेंस्ट नेचर स्किल, ओ माय गॉड, दिस इज अगेंस्ट नेचर, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया अगेंस्ट नेचर. थ्रिफ्टलेस एम्बिशन, क्या फ़ायदा है ऐसी एम्बिशन का, क्या फ़ायदा है ऐसा मतलब पैसों का जिसमें अपने ही फादर को आप मरवा दे रहे हो, ऐसा क्या फ़ायदा. दैट विल्ट raven up thine own lives means, see, father is the source of life. क्या फ़ायदा है ऐसी विक्ट्री का, क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का. दैट विल डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टेंस ऑफ योर लाइफ, द सोर्स ऑफ योर लाइफ, दैट मीन्स योर ओन फादर. क्या फ़ायदा हुआ अपने ही फादर को मरवा के. देन इट इज़ मोस्ट लाइक द सॉवर्निटी विल फॉल अपॉन मैकबेथ. फिर तो ऐसा लग रहा है कि सारी जो किंगशिप है वो मैकबेथ ही पे आएगी, और तो कोई बचा नहीं यहाँ पे इस लायक. मैकडफ, ही इज़ ऑलरेडी नेम्ड and gone to Scone to be invested. हाँ वो तो ऑलरेडी ही इज ऑलरेडी बीन नेम्ड एज द किंग, और गया हुआ है कॉर्नेशन के लिए स्कोन, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी उसको सर पे ताज पोशी के लिए वो गया हुआ है. रॉस, वेयर इज डंकन्स बॉडी. अच्छा, डंकन की बॉडी कहाँ है. कैरेट टू कॉलमेकिल. सो कॉलमेकिल एक स्कॉटलैंड का आइलैंड है जहाँ पे सारी किंग्स की बॉडीज बरी की जाती थी, तो वहीं पे लेके गए हैं. सारी जितने भी एंसेस्टर्स थे उनके वहीं पे बरी हुए थे, तो वहीं पे डंकन की भी बॉडी ले गए हैं. द सेक्रेड स्टोर हाउस ऑफ हिज प्रिडिसेसर्स एंड द गार्जियंस ऑफ देयर बोन्स. सी, उसके जितने भी एंसेस्टर्स थे उनकी भी ग्रेव वहीं पे, जितने भी किंग्स हैं उनकी डेथ के बाद सब वहीं पे रहते हैं. रॉस, विल यू टू स्कॉन. तो आर यू ऑल्सो गोइंग टू स्कॉन, तुम भी जा रहे हो क्या टू विटनेस द कॉरोनेशन ऑफ मैकबेथ, क्या तुम देखने जाओगे. मैकडफ, नो कजन, आई विल टू फाइट. सी, मैकडफ इज नॉट वेरी हैप्पी, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इसके पीछे ना मैकबेथ का हाथ है. भाई कोई अपने फादर को क्यों मारेगा, जबकि फादर का नेक्स्ट सक्सेसर तो मैल्कम या डोनेल बेनी थे. मारेगा वो बंदा जिसको डायरेक्ट उसको पता है कि मैं किंग नहीं बनूंगा. मैल्कम और डोनेल बेन को ही तो किंग बनना था. तो मैकडफ को कहीं ना कहीं ये बात का हिंट है कि प्रॉबेबली इसके पीछे मैकबेथ का हाथ है. तो वो कहता है नो, मैं तो अपने प्रोविंस जा रहा हूँ जहाँ का ये थेन है, थेन ऑफ 5, मैं तो वहीं जा रहा हूँ. रॉस, वेल आई विल थिंक, मैं तो जाऊँगा, मैं तो मैकबेथ को देखने जाऊँगा कॉरोनेशन सेरेमनी. मैकडफ, वेल मे यू सी थिंग्स वेल डन देयर. आई होप कि तुम सब अच्छा वहाँ पे देखो, सब कुछ अच्छे से वहाँ पे निपट जाए. एडियो, गुड बाय. लेस्ट आर ओल्ड रोब्स सिट ईजियर दैन अ न्यू. So he is actually suspecting, he's saying that the new rule might not be as good as the one which we used to have during Duncan's time. So वही वो बोल रहा है, हम यही चाहते हैं कि जो न्यू स्टेट अफेयर्स हों, जो भी न्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स हों, is not conducive to us as the old one. Ross, farewell father. So Ross is saying the old man, goodbye father, goodbye old man. Old man, God's benediction go with you. May God's blessings be with you. भगवान करे आपको खूब अच्छे से God bless करें. And with those that would make good of bad and friends of foes. I am blessing all those people जो evil को good में कन्वर्ट कर दें. जो भी लोग हैं जो कि evil चीज़ों को good में कन्वर्ट करते हैं, मैं उनको भी bless करूँगा. And friends of foes. एवरी पर्सन, उस पर्सन को मैं ब्लेस करूँगा जो अपने एनिमी को माफ़ कर दे और फ्रेंड्स में कन्वर्ट कर ले. सो आई विल ब्लेस एवरी वन. मे माई ब्लेसिंग्स बी देयर विथ एवरी वन. सी, ओल्ड मैन है, सो ऑन द वर्ज ऑफ डेथ है, तो ही इज़ जस्ट शेडिंग हिज लव एंड अफेक्शन टू ईच एंड एवरी पर्सन. आई होप this video will be really helpful for you people. If it is so, then please don't forget to like, share and subscribe to this channel. Bye bye.